Hello everyone, I am Justina Perez and I welcome you all to today's news analysis जहां पे हम न्यूज़ देखेंगे from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. The first news article of the day जो है दोनों the Hindu और Indian Express में दिया गया है and this is not a new news. It is with regard to the recent cyclone जो हुआ है. Now what is the name of the recent cyclone? ये न्यूज़ में था दो दिन से हमने पहले भी किया है साइक्लोन रेमाल. राइट सो यहाँ पे साइक्लोन रेमाल जहां पे लैंडफॉल हुआ था इट वाज ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइव्स इवन इन द नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अगर हम देखें मिजोरम में which has been worstly affected, about 27 deaths and also in regions like Assam, Meghalaya and Mizoram. तो यहाँ पे अगर हम देखें the major cause of the death is the landslips or the landslides. यानी कि साइक्लोन की वजह से जो बारिश हुई है इसकी वजह से landslides हुआ है. Now what is landslides? It is mainly the massive removal of mud और ह्यूज पोर्शन ऑफ रॉक जो गिरा है सो वो गिरने के कारण जो देयर वर लॉस ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ह्यूज चंक ऑफ द रॉक हैज बीन टेकन ऑफ एंड इट हैज कॉज्ड डेथ्स ऑफ पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. So let's understand with a little more in detail with this particular article जो दिया गया है Indian Express में. So they have mentioned with regard to what are the danger in terms of landslides, what are the numbers that we have to take care. So let's understand some important aspects with regard to landslides. So यहाँ पे we understand the cyclone Remal which has led to destruction in northeast. इसके पहले और एक साइक्लोन आया था 2009 में जिनका नाम था साइक्लोन आइला. ठीक है, साइक्लोन आइला. एंड वी हैव सीन रेमाल का जो नाम है ये किसने दिया है, किस कंट्री ने रखा है? इट वाज केप्ट बाय ओमान और एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है सैंड. So here if we see the data that we have with regard to landslides, ये कहते हैं कि 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो लैंड मास है it is mainly prone to landslides. Okay, what is the number? 0.42 million. और अगर हम ये देखें it is spread out in 15 states and 4 union territories. Now who is giving us this data? This data is by the organization Geological Survey of India, GSI. We will see about GSI, Geological Survey of India क्या है हम देखेंगे. Before that let's understand some more data. तो 0.42 million we have seen so far 0.42 million स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है इंडिया में that is prone to landslides and major of this 0.42 million it's mainly in the hilly regions because hilly regions are only prone to landslides, right? और ये hilly regions mostly कहाँ पे पाए जाते हैं? in the north east का terrain जो है उधर के geography जो है it is more of hills. That is the reason. So if you see इसमें से 0.18 इस 0.42 से 0.18 जो है it is mainly mentioned in the northeastern region. ये कहाँ पे है? It is mainly in the northeast region and they are mainly hilly regions. So ये हमको कुछ डेटा मिलता है इस आर्टिकल से. Apart from that we see about the National Disaster Management Authority. तो ये जो अथॉरिटी है इट हेल्प्स इन रिगार्ड टू कोऑर्डिनेशन. अगर कभी कोई डिजास्टर आती है, कोई आपदा होती है, इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यूइंग, इन टर्म्स ऑफ इवन प्रिवेंशन, मिटिगेशन, ऑल ऑफ दैट इज असाइन्ड टू दिस पर्टिकुलर बॉडी. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर इंडिया, स्पेशली जब ऐसे सिचुएशन आती है. ये बॉडी इज of prime importance. So we're going to see about two important bodies. एक तो है the Geological Survey of India जिसने हमको एक डेटा दिया है and the second one is the Disaster Management Authority, the National Disaster Management Authority. So let's see about these two bodies. तो पहला बॉडी अगर हम देखें that is the Geological Survey of India. ये एक बहुत पुरानी बॉडी है and हम देख सकते हैं कितनी पुरानी है, 1851 में है. But it is the second
ओल्डेस्ट बॉडी इन इंडिया, राइट? पहली बॉडी देखें तो इट इज 1767 में द सर्वे ऑफ इंडिया. सर्वे ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट वन, एंड देन द सेकेंड ओल्डेस्ट बॉडी इज द जियोलॉजिकल सर्वे. 1851 में ये बॉडी बनाई गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है कोलकाता में. अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इट मेनली कंडक्ट्स सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वेज, लैंड के बारे में समझना, स्टडी ऑफ द अर्थ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट मिनरल्स, मिनरल्स देखना, असेस करना है. तो ये कौन बॉडी करता है? ये पर्टिकुलर बॉडी इज इंपॉर्टेंट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. किस बॉडी के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर. अगर हम पहले ऑफिसर्स की बात करें जिन्होंने इनको हेड किया है, द फर्स्ट डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द जीएसआई, इट इज सर थॉमस ओल्डहम. Okay, he is the first DG. And if we talk about the surveyor, जिसने सर्वे किया है, that is David Hiram Williams. David Hiram Williams. So this is some important facts for your exam that you need to know with regard to the Geological Survey of India. Let's understand about the next important body that we discussed, and that is the National Disaster Management Authority. Okay, तो ये जो body है, it is a statutory body. यानी ये किसी एक्ट से बनी है. कौन सा है ये एक्ट? इट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, राइट? तो ये एक्ट से ये बनी थी, लेकिन ये बॉडी फॉर्म की गई थी इन 2006. सो एक्ट आया था 2005 में, बॉडी बनी थी इन 2006. सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, व्हाट डज इट डू? इट मेनली takes or it's an in charge with regard to the disaster management of India. अगर कोई आपदा होती है, कोई disaster होता है, this is the body that coordinates with regard to state governments, district governments. ये सब coordination का काम, bringing about relief, bringing about mitigation of these disasters, prevention of these disasters, all of this is taken by this body. Now, because it's a very important body, directly affecting our lives, क्योंकि affect करता है in terms of the safety of the people, the safety of the public infrastructure. तो इसके लिए इनका जो चेयरमैन है, it is the Prime Minister of India. All right, the chairman is the Prime Minister of India of this particular body. और इनके अलावा 9 और मेंबर हैं, जिनमें से एक वाइस चेयरमैन भी है, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. एंड ये बॉडी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Okay, so we have seen two important bodies. GSI, Geological Survey of India, comes under Ministry of Mines, whereas the National Disaster Management Authority of India comes under Ministry of Home Affairs. और ये दोनों body are mainly taking major efforts with regard to landslides, जिसने अभी तक हमने देखा है. Let's understand the next article of the day. और ये दिया गया है द हिंदू में, and it was with regard to the तमिलनाडु farmers जो protest कर रहे हैं against the new construction at the मुल्ला पेरियार. तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन है? मुल्ला पेरियार डैम है. सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम, और ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में हम जानते हैं. ओके, सो इसके लिए फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द मुल्ला पेरियार डैम, और ये एग्जैक्टली कहाँ पे है. तो मुल्ला पेरियार डैम इज अ वेरी ओल्ड डैम, 126 ईयर ओल्ड, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये डैम बनी थी. अराउंड 1880s दिस डैम वाज फॉर्म्ड. And if we see, the location of this particular dam is in the congruence or confluence of two rivers. एक है रिवर मुलायर और दूसरा रिवर है पेरियार. ये दो रिवर्स कहाँ पे है? केरला. ठीक है, सो रिमेंबर दिस डैम is located in केरला. इन दो रिवर्स के confluence, यानी कि you can say the convergence of these two rivers. एंड अगर हम हिल्स की बात करें, ऑन विच हिल्स? कार्डमम हिल्स जो वेस्टर्न घाट्स के हैं, इस पे ये डैम सिचुएटेड है. हाइट है इस डैम की 53.66 एंड लेंथ है 365.85 मीटर्स. और हमने देखा है कि डैम जो है केरला में है, लेकिन इसको ओन्ड, ऑपरेट और मेंटेनेंस कौन कर रहा है?
तमिलनाडु कर रहा है, तो इसीलिए समझ रहे हैं तमिलनाडु ने प्रोटेस्ट किया है। नाउ व्हाई हैव दे प्रोटेस्ट? और क्वेश्चन आपको आया होगा कि अगर डैम केरला में है तो प्रोटेस्ट या जो ऑपरेशन है, जो मेंटेनेंस है, जो ओनरशिप है, वो तमिलनाडु के पास कैसे आई? इसके लिए वी हैव टू गो बैक इन टाइम। तो ब्रिटिशर्स ने जब ये डैम बनाया था, उन्होंने लीज पे कितने साल का लीज? 999 ईयर लीज में दिया था इस डैम को टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, 999 ईयर लीज में दिया था टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट बैक इन 1888 की बात करें, इस साल में इन्होंने दिया था 29 अक्टूबर के दिन में उन्होंने ये डैम दिया था इनको। सो दिस इज मेनली व्हाई वी सी दैट द ऑपरेशन इज गॉन टू तमिलनाडु। बट द क्वेश्चन कम्स, तो प्रोटेस्ट कहां पे हो रहा है या प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? उसके लिए ओवर द इयर्स क्या होता है, दिस डैम बिकम्स वीक, राइट? हो सकता है कि लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर वीक हो सकता है, राइट? तो इसमें क्या हुआ, अराउंड 1979 के आसपास वी फाइंड दैट एक कमिटी गठित हुई थी, कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इट वाज फॉर्म्ड सो दैट मेनली टू डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम, कि कितना स्टेबल है ये डैम। एंड उस कमिटी के रिकमेंडेशंस जो चेयर किए गए थे वो फॉर्मर वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयर थे। तो इन्होंने कहा कि आपको जो आपका कैपेसिटी है, द वाटर लेवल कैपेसिटी जो 152 है, इसको आपको रिड्यूस करना होगा। कितना रिड्यूस करना होगा? यू हैव टू रिड्यूस इट टू 136। सो ये किसने कहा था? ये जो कमिटी जो बनाई गई थी, उन्होंने डायरेक्ट किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आपका जो वाटर लेवल है 152, the maximum capacity of the water level of the dam should be reduced to 136. And with regard to this, later on अगर हम केस बहुत चला, कंट्रोवर्सी थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ कोर्स will kind of not agree to it। तो ये सब होने के बावजूद we see that सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था 2014 में that the government, the Tamil Nadu government can mainly keep the level at 142, keep the highest level at 142। क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ये डैम किसके लिए यूज करती है? आपकी इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सब कुछ ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर दे वांटेड टू अगेन यूज द डैम टू द फुलेस्ट। तो 142 तक उन्होंने एक लेवल सेट किया था एंड दे टोल्ड द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू गेट इन सम स्ट्रेंथनिंग मेजर्स ऑफ द डैम, ताकि डैम अनस्टेबल ना हो, केरला के रीजन में लैंडस्लाइड्स ना हो, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। सो केरला वाज ऑफ द ओपिनियन, या केरला व्हाट केरला वांटेड कि ये जो डैम है इसको डिमोलिश की जाए और एक नया डैम कंस्ट्रक्ट की जाए। So this is the say of the Kerala government, whereas Tamil Nadu government says that the dam is perfectly fine। आप हमको ये डैम स्ट्रेंथनिंग मेजर्स हम करेंगे और एंड वी वांटेड टू बी बैक टू 152 एज वाज इट्स ओरिजिनल लिमिट। ओरिजिनल वाटर लेवल क्या था? 152। तो हमको ये वापस से लाना है। सो दैट इज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द आर्टिकल टुडे। सो यू विल सी दैट यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम 152 फीट वापस से हमको चाहिए, इज व्हाट द प्रोटेस्टर्स आर सेइंग, द फार्मर्स ऑफ तमिलनाडु आर सेइंग। केरला गवर्नमेंट के से में हम, इसलिए द मेजर थिंग इज दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट और द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डैम कंस्ट्रक्शन, कि उनको नया डैम नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि वो डैम एकदम अच्छा है। So this was all with regard to the controversy. We've understood about a very old dam, which is the Mulla Periyar Dam. And one more important fact that you have to remember is the Periyar River. Okay, now Periyar River आप देख सकते हो यहाँ पे, you will find the Mulla Periyar Dam कहाँ पे constructed है? Okay, this is the Mulla Periyar Dam. ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है ये। And here you also have the Periyar
tiger reserve which is very close to the dam. Okay, in terms of this, if you see the Periyar river, ये जो Periyar river है, it is a longest river in Kerala, and because it's the longest river in Kerala, mainly important for the major sources or major activities of the Kerala people of Kerala, it is also called as the lifeline of Kerala. ठीक है, लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है इसको, बिकॉज ऑफ द यूजेस दैट दिस पर्टिकुलर रिवर हैज. अपार्ट फ्रॉम दैट, कहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है? शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो तमिलनाडु में है, एंड इट फ्लोज थ्रू द पेरियार नेशनल पार्क इज वेल. तो हम देखते हैं कि पेरियार रिवर इट्स वेल विद इन इट्स ऑल्सो लाइफलाइन ऑफ केरला, बट इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिलनाडु. एंड इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं, मुतीरापुड़ा, मुलायार, चिरुतोनी एंड पेरिंजन कुटी. ठीक है, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज है, एंड वी हैव सीन द मुला पेरियार डैम. सो दैट इज विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. और ये एक एडिटोरियल है, तो क्या इस एडिटोरियल में लिखा है ये समझते हैं. नाउ यू नो दैट इलेक्शंस आर गोइंग ऑन. हम ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं. द लास्ट एंड फाइनल फेज ऑफ इलेक्शन इज अबाउट टू हैपन. तो इस दौरान हमको ये आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है. सो मोस्ट ऑफ देम मस्ट हैव निग्लेक्टेड. जैसे कैंपेन्स होती हैं, इलेक्शन की कैंपेन्स होती हैं, we find that they can be done on social media, on your televisions, आपके न्यूज़ रिपोर्ट्स में, ये सब में ये कैंपेन्स को चलाया जाता है, where the political parties they give or they talk about what they're going to do for the people, voter awareness के लिए ये सब इस्तेमाल होता है हमारा मीडिया. But if you see in the recent times, ये निग्लेक्ट करती है a group of people, and that is the people who have problems with the hearing aid, यानी कि the deaf people. Okay, so पहले अगर आप दूरदर्शन देखते थे in the 1980s, what would happen? They would mainly have sign language, right? एक person होता था with the presenter, with the news presenter, जो sign language में news बताता as what is said by the news anchor. So that was followed by Doordarshan. But if you see in the recent times, there is no such activity or there is no such provision जहाँ पे sign language, Indian sign language, ये कहीं भी आप नहीं देखोगे जब political campaigns चल रही है. So it is said that they are neglected, and that is what this article tells us about. तो हम इस आर्टिकल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे. वील अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनके एक्ट के बारे में, एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो ये आर्टिकल मेनली पहले बताता है कि एक प्रोग्राम है उनके लिए. Let's understand what's the name of the program. The program's name is National Program for Prevention and Control of Deafness. ठीक है, National Program for Prevention and Control of Deafness. So this is mainly to prevent and treat the people who have problems with hearing impairments, right? And उनके लिए मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल रिहैबिलिटेशन देना, ये प्रोग्राम का मेजर मकसद है. सो ईयर 2007 में ये पर्टिकुलर नेशनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था. एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि दोनों स्टेट और सेंटर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस कम्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये पर्टिकुलर पॉलिसी या प्रोग्राम आता है. सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग दीज प्रोग्राम्स, वी स्टिल सी दैट देयर इज अ लैक on our policy makers path to get them all inclusive. So it is said that, इसलिए the title का नाम है, editorial का title है, still no sign of the language of equity and inclusion. Now let us understand some important facts more. यहाँ पे for the betterment or for the research with regard to the Indian Sign Language. Now article में एक बात कही है Indian Sign Language, ISL. इसका मतलब क्या है? Now mainly we also have American Sign Language, we also have Indian Sign Language. Now Indian Sign Language is mainly the use of hand actions
for the communicating with mainly the people who have a hearing problem, okay, for the people, for the deaf. तो आप साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिया में जो यूज होता है दैट इज द ISL. So you also have a sort of a research and training center ताकि हम constantly इसको promote करें, हम constantly इसको upgrade करें, propagate करें among the masses so that they are also open and understand how to use this sign language to communicate with the others. So ISL ने यहाँ पे हम देखेंगे ISL Research and Training Center 2015 में ऑफिशियली ओपन हुआ था. और ये किसका कंट्रीब्यूशन है, किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किसने सेटअप किया है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इस मिनिस्ट्री ने कौन सा सेंटर ओपन किया है? ISL रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग. कब स्टार्ट किया था? 2015 में. सो इन्होंने भी, हम देखेंगे ये भी एक पॉजिटिव मेजर है, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम जैसे था, ये भी एक पॉजिटिव मेजर है. एंड अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हो, राइट, द रीसेंट एजुकेशन पॉलिसी दैट हैड कम 2020 में, तो ये जो पॉलिसी है बताता है दैट इंडियन साइन लैंग्वेज शुड बी मेड ऑल्सो अ सब्जेक्ट इन योर स्कूल्स इन इंडिया. ठीक है, ये एक सब्जेक्ट सिखाना चाहिए, एज जैसे आपकी इंग्लिश है, दूसरे लैंग्वेजेस आप सिखाते हो, वैसे ही इंडियन साइन लैंग्वेज को भी सिखाना चाहिए. इज व्हाट दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट. सो all of these are there on paper, there are programs, there are centers, but still we find a lapse when we talk about what is happening on ground. So here we also have the other article talks about what is the number of people that are deaf or have a problem with hearing impairments. कितने ऐसे लोग हैं? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 5 million people have hearing impaired. I have hearing impairment. ठीक है, कितने लोग हैं? 5 million. Of course, that data is about you can say 12-13 years ago, right? So therefore, we say that in the present times, if we have some data that is given by the National Association of the Deaf, National Association of the Deaf, this has said that 18 million है ये नंबर. ठीक है, प्रेजेंट टाइम से 18 मिलियन है. और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन की, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, WHO की बात करते हैं, तो ये कहता है कि 63 मिलियन पीपल, 63 मिलियन इंडियंस हैव सिग्निफिकेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट. ठीक है, तो अगर प्रेजेंट डेटा की बात करें, WHO कितना कहता है? 63 मिलियन. So all of this is in terms of the challenge that we find कि इतने सारे लोग हैं, इसके बावजूद the government is not doing anything to promote the ISL or the Indian Sign Language. And here we also find in the Rights of Persons with Disabilities Act, एक एक्ट बनाया था. Now this is also not just for the deaf or for the people who are unable to hear well, but also in general. तो इनके लिए एक एक्ट बना था 2016. इसका पहले जो एक्ट था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो एक्ट था, इट वाज इन 1995. इसको रिवाइज करके, इसको अमेंड करके वी हैव द न्यू एक्ट, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPD 2016 में ये एक्ट है. ओके, एंड व्हाट इज द मेजर मोटिव? इट इज मेनली ऑल्सो सेइंग दैट इट इज फॉर प्रिजर्विंग एंड advancing the ISL. तो इसका एक provision we also see, but we don't find much done in this regard. Okay, so यहाँ पे अगर हम PWD की बात करें, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करें, दिस डज नॉट टॉक मच अबाउट कैसे वो ISL या इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में कैसे प्रोपोगेट करना चाहता है या पुश करना चाहता है. दैट इज मिसिंग इन द एक्ट. सो दैट इज अ ड्रॉबैक दैट इज गिवन, और बहुत सारे लोगों ने पिटिशन भी दिया है. सो इट्स नॉट एन ओवर आर्चिंग एक्ट इज वॉट द एडिटोरियल स्टेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी अंडरस्टैंड दैट जैसे हमने कहा कि दूरदर्शन में ये पहले ISL हुआ करता था. देयर वाज अ स्मॉल पर्सन हुड स्मॉल एक प्रेजेंटेशन होता था जहां पे जो भी न्यूज एंकर कहता है ये साइन लैंग्वेज में बताता था, बट दैट इज मिसिंग,
राइट. सो ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड इन टुडेज एक्ट और इन टुडेज एडिटोरियल. एंड ये जो एक्ट है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसके बारे में कुछ हम समझते हैं, कुछ फैक्ट्स इसमें हम पिक आउट करते हैं. सो फन थिंग इज the type of disabilities, right? What kind of disabilities? Maybe blindness, maybe handicapped होता है या hearing aid नहीं होता, तो ये disabilities है. तो पहले के एक्ट में सिर्फ 7 disabilities हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट ने इसको expand किया है. कितना expand किया है? About 21. Okay, so it has increased the type of disabilities to 21. Apart from that, reservation either in your government jobs or in your higher education institutions. पहले 3% था, अभी कितना increase किया है? 4% तक. And अगर आप higher education institutions की बात करते हैं, it has increased to 5%. The people with benchmark disabilities, okay, the children that have benchmark disabilities, उनको right to free education है. Okay, and that has increased. That means it's from 6 years to 18 years. ठीक है, तो ये आपको स्टार मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग द एम्बिट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. ऑलराइट, सो दिस इज विद रिगार्ड टू दिस एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि बहुत सारे दिन होते हैं उनके लिए, टू रिकग्नाइज, टू प्रमोट द अवेयरनेस. सो उसके लिए हमने नोट डाउन किया है कुछ, तो आप देख सकते हैं. वर्ल्ड हियरिंग डे, ये कब है? 3rd मार्च. इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ, दैट इज सितंबर. ओके, सितंबर लास्ट में हम देखते हैं, दिस इज सेलिब्रेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अगर डिसेबिलिटीज ओवरऑल की बात करें, दैट इज ऑन 3rd of December. Clear? So this is mainly with regard to some important dates important for your exam. Let's understand the next article. ये भी एक एडिटोरियल है, हमने ये पहले भी किया है with regard to the Palestinians UN membership. तो हाल ही में हम देखते हैं कि 3 कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करती है स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन. कौन है ऐसे 3 कंट्रीज? हमने पहले भी डिस्कस किया है. सो वी हैव स्पेन, नॉर्वे एंड आयरलैंड. राइट, वी हैव कवर्ड दिस इन द प्रीवियस न्यूज डिस्कशंस. एंड दिस एडिटोरियल also mentions about that why is it tricky, why is it difficult for Palestine to get UN membership. Okay, the question of Palestine's UN membership. So we have covered this well in the 25th or the 24th of May 2024 discussion, right? On Saturday's discussion we have already covered कि कैसे मेंबरशिप मिलता है कंट्रीज को इन द यूएन मेंबर, टू बिकम अ यूएन मेंबर. व्हाट इज द चैलेंज एंड व्हाट इज द प्रोसीजर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ क्विक रिकैप विद रिगार्ड टू दैट. लेकिन अगर आप विस्तार में इसको देखना चाहते हो, डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक आउट द 25th May न्यूज डिस्कशन, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें स्टेट का राइट्स, स्टेट की ड्यूटीज या डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से कन्वेंशन में दिया है? इट इज गिवन इन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन. ओके, विच टॉक्स अबाउट कि स्टेट की कोई एक टेरिटरी होनी चाहिए, यहाँ पे पॉपुलेशन होना चाहिए, उनका कुछ थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आइडियलिज्म जो वो फॉलो करते हैं, सोवरेनिटी, ऑल ऑफ दैट मेनली इज मेंशन्ड इन द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन. 1933 का ये कन्वेंशन है. In terms of this, we see that UN की state membership के लिए, firstly, what are the 2 major challenges? UNSC, ठीक है, United Nations Security Council. इसमें कितने members हैं? 5 permanent हैं, okay, 5 permanent members and 10, right, 10 non-permanent members. तो total 15 members हैं. तो 5 members have the veto power, have a very important power. Now what are these 5 members? हमने डिस्कस किया है US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस. तो अगर कोई एक कंट्री डिसाइड करती है कि it kind of doesn't vote or mainly it obstructs the voting or says no for it, veto करती है, तो क्या होता है? They cannot go ahead with it. So ये clause जो है, that is the reason. So it has been so that the veto bearing US in UNSC has obstructed
the resolution for Palestine to become a UN member. ठीक है, and therefore Palestine जो enjoy करता है, it is an observer, right? Apart from that, who is the other observer, permanent observer की बात करें, we had the Holy See, right? Italy, Vatican City, Holy See. So apart from Holy See, we have Palestine. Both of them are permanent observers. So it is not a member, but it has an observer status. So this article says that 142 members ऐसे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है कि Palestine should get a member state or become a member state of the UNGA. ठीक है, अगर UNSC में ये पास होता है ये रेजोल्यूशन, देन UNGA में वोटिंग होगा, राइट? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग होगा, और कितना वोट से वो पास होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस हैज बीन कवर्ड वेरी वेल. लास्ट टाइम द हिंदू में दिया था, दिस टाइम इंडियन एक्सप्रेस में दिया है, एंड वी हैव ऑल्सो हैड अ क्विक रिकैप ऑफ द सेम. लेट्स अंडरस्टैंड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में दिया है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट. सो यहाँ पे वी हैव अमृतपाल. ठीक है, अमृतपाल है, अमृतपाल सिंह, जो कंटेस्ट कर रहा है लोकसभा के इलेक्शंस में. वो भी कंटेस्ट कर रहा है सीट के लिए, लोकसभा के सीट के लिए. एंड अभी हमको पता है कि इन सून पंजाब, द रेस्ट ऑफ पंजाब is also going to go in going to vote. So in this scenario we see that अमृतपाल अभी कहाँ है? ये है जेल में. ठीक है, ये आसाम के जेल में है, लेकिन वो सीट के लिए लड़ रहा है. और अभी कौन उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं? उनके परिवार वाले. द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर मेनली ensuring with regard to the campaign. But right now he is in Assam. Now the question is here, he cannot, okay, let me just quickly ensure this, 1 minute. So right now ये जेल में है, right? ये आर्टिकल कहता है कि आप according to the constitution, according to our laws, he cannot vote, but he can contest for elections. Okay, तो अगर आप जेल में हो तो आप वोट नहीं कर सकते हो, बट आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो. ओके, सो दैट इज द मेजर चैलेंज, और दैट इज द मेजर डिस्कशन ऑफ दिस आर्टिकल. सो अमृतपाल डज नॉट हैव अ राइट टू वोट, बट ही हैज द राइट टू बी इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट. He has the right to be a member of the parliament if he comes in power, if he gets the required majority. So ये exactly क्या मामला है? What is the issue about? Let us understand. So when you talk about this, we have to go back to certain Supreme Court judgments. We have to understand certain laws of the parliament, and we go back to the constitution. So अगर हम ये आर्टिकल देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है. दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है. पहला जजमेंट है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन, 1975 का जो केस है, जो जजमेंट है, जिन्हें लिखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो ये एक इंपॉर्टेंट हमको पता है कि इलेक्शंस जैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का. The second thing about it is Kuldeep Nayar versus Union of India 2006. इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वोटिंग का जो राइट है, द राइट टू वोट, it's not a constitutional, it's not a fundamental right, but it is a statutory right. Okay, वोटिंग का राइट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है. तो अगर कल पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर चाहती है, कुछ लॉज बनाती है, दैट कैन चेंज. ओके, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेनली मेक लॉज विद रिगार्ड टू किसने वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है. एंड क्या लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉज बनाया है?
बिल्कुल बनाया है. And what is that law? That law is the Representation of Peoples Act. ये हम पढ़ते हैं Representation of Peoples Act 1951. So इस एक्ट में कहता है that the disqualification from contesting of election of or in terms of the parliament or the state legislature on conviction for certain offenses. तो ये क्या है समझते हैं. So we decided or we've discussed so far, अगर आप जेल में होते हो तो आप वोट नहीं कर सकते, लेकिन आप कंटेस्ट कर सकते हो. और in terms of this, it's also important to understand कि अगर मुझे कंटेस्ट की बात कर रहे हैं हम, in case we're talking about contesting of elections, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कौन हो सकता है? अगर आपके क्रिमिनल चार्जेस अगर किसके ऊपर है, तो ये बस चार्जेस है. क्या वो कन्विक्ट हुआ है? द आंसर इज नो. तो कन्विक्ट होने पे ओके, द पर्सन हु इज कन्विक्टेड कि उसने अपराध किया है, द केस हैज बीन ऑलरेडी सेड. So if a person is convicted, he cannot be a member of the parliament or he cannot stand for elections because the case has already been decided. लेकिन अगर किस पर सिर्फ चार्जेस लगे हैं, बस चार्जेस लगे हैं कि उसने कुछ क्राइम किया है, the court has not given a verdict, then the person can contest for elections. Clear? So this is what is the case for अमृतपाल. उन पर सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, वो कन्विक्ट अभी तक नहीं हुआ है, राइट? तो इसीलिए he can stand for elections. So this is what the case talks about. That means if they are charged with criminal offenses, there is no problem. But if the person is convicted, then he cannot. और कितना समय वो कंटेस्ट नहीं कर सकता? That is 6 years. जो आप कन्विक्शन का डेट है, उस डेट से आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं. एंड ये खत्म कब होता है? आपके सेंटेंस खत्म होने के बाद से 6 साल, राइट? आफ्टर द एंड ऑफ योर सेंटेंस, 6 years आफ्टर द एंड ऑफ योर सेंटेंस, तब तक मेनली आप डिस्क्वालिफाइड हो, आप कंटेस्ट नहीं कर सकते. So let's have a quick recap with regard to what we have discussed with this article. Very interesting article, but also can be very confusing. So अगर आप जेल में होते हो, if a person is in jail, can he vote? He cannot vote. A person confined in the jail cannot vote. But in case उसको कंटेस्ट करना है इलेक्शंस, इफ ही वाज आउट एंड ही हैड गिवन कि मुझे कंटेस्ट करना है, और उसने एफिडेविट और सब फाइल किया है, सो ऑल ऑफ दैट रीजंस ही इज अलाउड टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस. वो लोकसभा, राज्यसभा के या लोकसभा और या मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसके लिए कंटेस्ट कर सकता है. हाउएवर, इफ द पर्सन has criminal charges against him, सिर्फ चार्जेस लगे हैं, असल में केस का वर्डिक्ट नहीं सुनाया है, क्रिमिनल चार्जेस है, तो यहां पे वो कंटेस्ट कर सकता है. बट अगर वो कन्विक्टेड है, if he is convicted of a crime that he's done, then he cannot mainly contest elections. So I hope this is clear. Now let us also understand certain petitions that were signed. Petition ये था कि अगर in terms of if a person is convicted, he should be disqualified forever. He should be disqualified. उसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाने के या एमएलए बनाने के लिए. That was the petition. ठीक है? However, these cases keep on going. If in case there is some certain change, then we will ensure that it is discussed. Apart from that, अभी कितने टाइम तक वो डिस्क्वालिफाइड है? डिस्क्वालिफाइड है कन्विक्शन के डेट से उसके सेंटेंस के एंड होने तक के बाद 6 साल. ओके, 6 years आफ्टर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस, इस तब तक ये डिस्क्वालिफाइड है. ये एमएलए नहीं बन सकता, एमपी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता. ठीक है?
So this is what the major case is about. And अगर हम पीरियड की बात करें, 6 साल की बात करें, who is the major power or who is empowered to mainly modify this? It is the Election Commission of India. So stomach this. The Election Commission of India is empowered to remove or reduce the period of disqualification. Right? So this is the major news with regard to this explainer. Very interesting. Apart from this, let's also understand another explainer given in the Indian Express. And ये कहता है that there have been a lot of cyber crimes, mainly in India, from the time period of January to April. In few months के पहले अगर हम बात करें, lot of cyber crimes have had happened. And if you talk about from which region, it is these Myanmar, Laos and Cambodia. ये 3 कंट्रीज से बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स टारगेट कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को. Okay, so which is the important body that is in charge with regard to cyber crime stopping or prevention? That is the I4C. I4C का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार देखा है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि 4 बार C आता है, राइट? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर फुल फॉर्म्स आता है, तो यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज द बॉडी that gives us the trend, the data, which says that 46% of such frauds have been found in this period. और बहुत सारा रकम है, 1776 करोड़ जो फ्रॉड्स हुए हैं इन कंट्री से आए हैं. जो भी हमारे केसेस है फ्रॉड के, 46% इन कंट्री से आया और इतना वैल्यू है इसका 1776 करोड़. Now the question comes, कैसे क्राइम हो रहा है ये? What are the types of these crimes? So quickly let's go and understand this article. तो हम देखते हैं that in terms of there are 4 types of this operation, this criminal operation. आपके साथ भी हो चुका होगा या आपके परिवार में से या अपने दोस्त में. You must have heard of these crimes, very common crimes, but it is new methods that are operating. So आप अगर सतर्क रहेंगे, you will be able to give knowledge to your fellow mates, right? Let's start. First scam is trading scam. Trading scam में क्या होता है? यहाँ पे आपको सोशल मीडिया में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एड्स आएंगे जहां पे इट्स गोइंग टू बी टेलिंग यू दैट आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ये सब आपको कुछ ज्ञान देंगे. एंड वंस यू आर nicely the victim has been understanding that okay I want to make more money, ये ऐप डाउनलोड करेगा. जो आपका जो क्रिमिनल है आपको जो बताएगा, साइबर क्रिमिनल जो आपको बताएगा, वो ऐप आपको आप डाउनलोड करेंगे, राइट? ऐप में रजिस्टर करेंगे एंड इसमें जो ऐप में बताया गया है कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है वो आप ब्लाइंडली करोगे. ऐसा लगता है कि कोई क्यों करेगा, but this is what the manipulation that happens, this is what the problem that happens. People are not educated. और ये अगर आप स्टॉक्स देते हो, they are not registered in your SEBI, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है. जो भी स्टॉक्स है ये बोगस स्टॉक्स है. तो ये जो आदमी है he will invest और उसको रिटर्न्स भी मिलेगा. he will show that he's got profits. जब प्रॉफिट्स एक बार देखा अपने अकाउंट में आ रहा है और भी इन्वेस्ट करेगा. So therefore this is going to mainly be a very, you can say a series of events that happens, a chain of events that will follow, and then he will be duped of his money. तो ये है ट्रेडिंग स्कैम. ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस स्कैम में वो ज्यादा फंसते हैं. द नेक्स्ट स्कैम इज द डिजिटल अरेस्ट स्कैम. ठीक है, ये तो मेरे सामने ही हुआ है. आई हैव सीन पर्सन बीइंग digitally arrested. However, the person was very smart. What is this? Let us understand. तो आपको एक कॉल आएगा saying कि मैं इस पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, मैं इस थाने से बात कर रहा हूँ, and they are going to tell you that your family member has done some crime. Okay, he has illegally taken maybe some drugs या goods या कुछ fake passport, कुछ काम किया है, illegal काम किया है. तो
तो आपको बताएंगे कि आपने किया है या आपके किसी परिवार वाले ने ये क्राइम किया है। तो जब आपको ये पता चलेगा, दे आर गोइंग टू से दैट हम एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप हमको इतना पैसे दे दो, हम केस क्लोज करते हैं, आप अच्छे घर के दिखते हो तो हम केस नहीं लगाएंगे। So this is what this crime says. The person will give, instead of going and ensuring that this doesn't go out in the society, let me quietly give him some money and close the case so it's not disclosed anywhere. And that is what happens. You give the demand and therefore you are caught in the crime. Okay, so this is the digital arrest, very common one. Apart from that, investment scam or the task based scam. तो ऐसे कॉल्स आते हैं कि आप अगर 5 स्टार रेटिंग देते हो किसी ऐप को या किसी कंपनी को, हम आपको 500 रुपए देंगे फॉर एवरी टास्क दैट यू डू। ओके, अगर आप 5 स्टार रेटिंग देते हो, गूगल रिव्यूज देते हो, हम आपको 500 रुपए दे देंगे। So that is a task-based investment where the person is trying to gain small incentive, छोटे रकम के लिए, but later on क्या होता है, he doesn't get the money. रिव्यू देने के बाद भी he doesn't get the money, यानी कि और ज्यादा टास्क बताते हैं कि आपको कुछ प्रीपेड मर्चेंट टास्क होता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। So all of this they try to get you more to do more tasks, and when you deposit money with them, they have taken it away. So that is another investment scam in this particular cybercrime. And the last one is the dating scam. इसमें क्या होता है, in this particular scam, the victims, okay, they are lured by foreign ladies, और वो बोलते हैं कि हम आपको मिलने आएंगे, and they come and this when they come to your place of residence, they say that the police or they have held me in certain you can say detained me in some center. तो आपको थोड़े पैसे देने होंगे and only then will they allow me to come out. So this is mainly kind of a fraud that happens with regard to women. The victim is mainly the man and the luring person is like a honey trap, right? So this is mainly a romance and dating scam. So these are the major scams that we see, and which is the regions that we've seen. म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, इस रीजन में ये ज्यादा स्कैम हम देखते हैं। यहाँ से क्रिमिनल्स होते हैं जो इंडिया को टारगेट करते हैं। लेट्स क्विकली सी अबाउट द I4C, which is the Indian Cyber Crime Coordination Center, I4C, which is a nodal point to curb cybercrime in the country. As we said, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, इसका लोकेशन है। एंड अगर आप देखते हैं यहाँ पे द CEO, विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द आर्टिकल, व्हाट इज इट, हु इज ही? राजेश कुमार। ठीक है, राजेश कुमार है इसके CEO। तो अगर हम देखें I4C के अलग अलग वर्टिकल्स हैं, ओके, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम्स, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। सो व्हाट आर दीज सेंटर्स डूइंग? अगर आपको नाम से ही पता चलेगा, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लोगों को ज्ञान देना कि कैसे साइबर क्राइम होते हैं या कैसे बचना होता है, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये है ट्रेनिंग सेंटर। अगर हम रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो ये अलग अलग टूल्स जनरेट करते हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी बढ़े, ओके, साइबर सिक्योर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बारे में ये सब रिसर्च करते हैं द NCR एंड IC बॉडी। जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम क्या करेगा? इट विल कोऑर्डिनेट अमंग डिफरेंट एजेंसीज सो दैट द साइबर क्राइम कैन बी डिटेक्टेड, प्रिवेंटेड एंड सो। Apart from that, cybercrime ecosystem management unit, this will ensure that people are more aware about things to create a cyber safe environment. तो ये NCEMU का काम है। Whereas other than that, national cyber crime reporting, तो ज्यादा से थ्रेट्स, अगर आपको साइबर क्राइम थ्रेट्स हो रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना है। So that is mainly for your regular intervals के लिए you need to update them, you need to inform them. अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस, तो इसमें भी हम देखते हैं एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो थ्रेट्स मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइबर क्राइम फोरेंसिक्स लेबोरेटरी। फोरेंसिक का मतलब क्या है?
जैसे फोरेंसिक्स, हमने बहुत सारे शोज देखते हैं, फोरेंसिक होता है, क्या होता है इसमें, आप क्राइम क्यों होता है या क्राइम कैसे होता है, दैट इज व्हाट द फोरेंसिक पीपल डू। तो इसमें भी जो अगर डिजिटल क्राइम्स हुए हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, दिस बॉडी डज इट। ओके, सो नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी। सो वी हैव सीन द वेरियस वर्टिकल्स ऑफ द I4C. So let's understand the next article. The next article is with regard to RBI. ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल दिया गया है, and what is this about? It is telling that the RBI governor, कौन है RBI की गवर्नर, शक्तिकांत दास, इन्होंने कुछ लॉन्च किया है ना। क्या लॉन्च किया है ये समझते हैं। The first one is प्रवाह। प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। सो इतने बड़े नाम में आपको देखेंगे प्रवाह कुछ मिल तो नहीं रहा है, बट एनीवे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट डज। It is mainly to seek authorization, license and regulatory approvals. अगर आपको अप्रूवल लेना है RBI से with regard to certain licenses, तो आप इस वेब पोर्टल में जाओगे। इट्स अ वेब बेस्ड पोर्टल, सेंट्रलाइज पोर्टल, ताकि आप लाइसेंसेस ले सको, अप्रूवल ले सको फ्रॉम द RBI. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। ये एक ऐप है, ठीक है, जो आपके एंड्रॉइड में, iOS सिस्टम में आपको मिलेगा। इस ऐप से रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दे कैन सेल व्हाट, द G-Secs, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आप बाय कर सकते हैं आपके फोन से। सो अगेन एंड वेरी गुड इनोवेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फाइनली द थर्ड सच प्रोविजन इज द फिनटेक रेपोजिटरी। फिनटेक रेपोजिटरी, फिनटेक का मतलब क्या है, जैसे आप पेटीएम के बारे में सुनते हो, फोन पे है, व्हाट आर दीज आर फाइनेंशियल कंपनीज दैट हैव वेरी वेल टेकन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, यूज टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, योर money, all of that can be done through these fintech companies, right? So इस fintech repository में क्या है, it is mainly giving us a data on all the Indian fintech firms। जैसे कि अगर पेटीएम की बात करें, फोन पे की बात करें, इन सब का डेटा हमको कहाँ पे मिलेगा, फिनटेक रेपोजिटरी में, ताकि आप अच्छे से समझ, you can understand about the regulatory as well as policy formulations. So this is with regard to what has been the recent launch or the initiative by the RBI. And the last article of the day, which is with regard to free trade agreements. Now free trade agreements news में है, तो जाहिर सी बात है we'll understand what are free trade agreements and what is this article telling you, कि हम अभी जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है अभी थोड़ा नेगोशिएशंस कर रही है, समझ रही है कैसे नेगोशिएट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करें। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज, UK एंड EU, ठीक है, UK एंड EU as well as with ASEAN, तो ये सब कंट्रीज के साथ हमारे नेगोशिएशंस चालू है। एंड व्हाट शुड बी आवर कोर पॉइंट्स, डिस्कशन पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ये सब इस आर्टिकल में दिया गया है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझना कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, और ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज जस्ट वन टाइप ऑफ अ ट्रेड एग्रीमेंट। Currently, India has about 12 free trade agreements with major countries as well as certain groupings, regional groupings के साथ. So if you talk about the different types of trade agreements, FTA is a part of it, but it is not the only one. So first one in line is the preferential trade agreement. Preferential trade agreement में क्या होता है, यहाँ पे आप ड्यूटीज कम करते हो, ड्यूटीज with regard to certain goods, with regard to certain services, अगर कम करते हो तो इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में आप कुछ लिस्ट बनाते हो जिसका नाम है पॉजिटिव लिस्ट। तो पॉजिटिव लिस्ट में जो भी गुड्स आते हैं उसमें आपको थोड़ा ड्यूटीज कम करना होता है, ठीक है। So this is mainly a preferential trade agreement. Apart from that, you have the free trade agreement that this article talks about. What is that? ये एक agreement होता है between two or more countries, ताकि आप ट्रेड बैरियर्स को कम करते हो और ट्रेड रिलेशंस इंक्रीज करते हो,
Okay, so that is the major motive to mainly remove the duties, the custom जो charges होते हैं, ये सब जो levy होता है जब आप goods को import करते हो, कुछ taxes लगाते हैं government, इसको कम करने वाला agreement जो है, it's the free trade agreement. So it is mainly eliminating these unnecessary tariffs that are decided when the free trade agreement is signed. So इसके लिए negative list में जो भी articles आते हैं वो आर्टिकल्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर मैं कुछ चीजें नेगेटिव लिस्ट में डालूं तो उनमें मैं टैरिफ घटाऊंगी नहीं, मैं एलिमिनेट नहीं करूंगी. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द नेगेटिव लिस्ट. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर. Apart from that, you have the other one, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECA. Now, what is this about? This, as the name suggests, economic के बारे में है. तो आपके जो goods, services, investments, mutual funds, ये सब का जब agreement होता है, that is your CECA. Apart from that, you have the Customs Union. तो अगर कुछ countries एक union का part है, तो इनमें duties जो है कम होती है. So imagine there are group of countries in this custom union. There will be no duties among them. Apart from that, अगर कोई X country इस country के साथ ट्रेड करती है तो सभी countries इस country के साथ जो tariffs लगाएंगे वो common होगा. Okay, that will be common tariffs that will be applied with X. Whereas between these countries there is no tariff, but with an outsider country there will be a common tariff. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन मार्केट है. कॉमन मार्केट का मतलब क्या है? इट्स अ फ्री ट्रेड एंड फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. तो अगेन हैविंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन द फॉरेन मार्केट, यानी कि इसके बीच में जो आदान प्रदान होता है फॉर द पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और विद रिगार्ड टू कैपिटल, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट वन, इकोनॉमिक यूनियन. दिस इज apart from everything, it's about also having common monetary and fiscal policies. ठीक है, इसलिए इसको इकोनॉमिक यूनियन कहते हैं. तो हमारे पॉलिसीज भी सिमिलर होंगी. जैसे यूरोपियन यूनियन is the example of economic union. ठीक है, apart from that they also share executive, judicial, तो बहुत सारे. So the type of you can say the agreement is much more in the economic union, the type of agreement. So let's see the last part. अगर हम कहें तो openness, it mainly seems preferential trade बहुत limited है. Free trade agreement थोड़ा you can say a little wider than preferential. But आपका economic market it's very wide, जहाँ पे आप allow कर रहे हैं with regard to trading very much well within certain countries. Monetary policy, fiscal policy की बात करें, थोड़ा openness increase हुआ है of the economic market. So that was all with regard to today's news discussion. बहुत सारे articles हमने discuss किए, interesting articles discuss किए, and of course हम देखेंगे certain questions with regard to the today's news analysis. So अगर आपने ये वीडियो देखा है, you will definitely be able to answer most of those questions.